ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے میرا شوہر مجھے ہسپتال کے دروازے پر چھوڑ کر خود اپنے کام پر چلا گیا۔ اس کا کام تھا بھی کیا، بھیک کی تو مانگنی تھی، مگر پھر بھی وہ میرے ساتھ اندر تک نہیں آیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اندر آئے۔ ایک فقیر کی بیوی کو کہاں عزت ملتی ہے سرکاری ہسپتالوں میں۔ میں اپنے خیالوں میں گم وہاں کھڑی تھی کہ ایک دم شور کی آواز سے ہوش میں آئی۔ وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے کافی سارے ٹیسٹ ہوئے، جن میں سے ایک ڈی این اے کا بھی تھا، جس سے پتہ چلا کہ وہ لڑکی ناجائز تھی۔ وہ شخص اپنی بیوی پر چیخ رہا تھا، کہنے لگا، شک تو مجھے اسی دن ہونا چاہیے تھا جب شادی کے 6 ماہ بعد ہی تم نے اولاد کا تحفہ دیا۔ مجھے میرے رشتہ داروں نے کہا بھی تھا کہ تمہاری بیٹی نہیں، یہ ناجائز اولاد ہے تمہاری بیوی کی، مگر میں نے کسی کی باتوں پر یقین نہ کیا اور صرف تمہارا اعتبار کیا۔ مگر آج دیکھو، 18 سال بعد تمہارا راز کیسے قدرت نے فاش کر دیا کہ ساری عمر میں جسے اپنی بیٹی سمجھتا رہا وہ تو میری اولاد ہی نہ نکلی۔ میں جا رہا ہوں، اس گناہ کی پوٹلی کو میرے گھر مت لانا۔ وہ شخص اونچی آواز میں بول رہا تھا اور سارے دم سادے سن رہے تھے۔ اس کی بیوی بار بار سب کے سامنے کہہ رہی تھی، میری بیٹی کو ناجائز مت کہو، مگر وہ آدمی اپنی کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ سرگوشی کرنے لگے کہ دیکھو اس عورت کی بیٹی ناجائز ہے۔ مجھے یہ سب سننا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنی دوائی کو بھول کر ویل چیئر پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے لگی، جس کی عمر 18 سال تھی اور اسے سر عام سب کے سامنے اس کا باپ ناجائز کہہ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اپنا درد یاد آنے لگا۔ میں نے بھی تو ساری عمر یہی کچھ جھیلا تھا، اسے تو اب یہ تانا ملا تھا اور میں نے تو اپنی پوری زندگی اس ناجائز لفظ کو سنتے گزار دی تھی۔ اس لڑکی کے سارے رشتہ دار اس سے منہ پھیر کر چلے گئے۔ اس کی ماں روتے ہوئے اپنے شوہر کو منانے چلی گئی اور اس کی بیٹی اکیلی رہ گئی۔ میں اس لڑکی کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ بیچاری ہونک بنی رہ گئی کہ میں اب کہاں جاؤں گی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک فیصلہ کیا اور اس لڑکی کو کہا، تم پریشان مت ہو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک انجان لڑکی کو یوں اپنے گھر لے جانے کی بات مجھے کرنی چاہیے تھی یا نہیں، مگر میں ناجائز کا تانا سن کر خود کو روک نہ پائی۔ اس لڑکی کو لے کر میں اپنے گھر لائی، تب تک میرا شوہر بھی آ گیا۔ اس نے ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر بہت شور مچایا اور کہنے لگا، میں کسی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، اس لڑکی کو نکالو۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر اس لڑکی کو پناہ نہ دی تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے بس کچھ دن پناہ دے دے، جیسے ہی میں اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوئی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر اس لڑکی کو رکھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر میری دھمکی کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام نائمہ ہے، مجھے آج پتہ چلا کہ میں ناجائز اولاد ہوں۔ میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے، لیکن آپ مجھے لے کر کیوں آ گئے؟ آپ نے مجھے پناہ کیوں دی؟ میں اس لڑکی کے کہنے پر اپنے ماضی میں کھو گئی۔ مجھے سب یاد آنے لگا کہ میں کون تھی اور میرے ساتھ کیا ہوا اور میں اس حال میں کیسے پہنچی کہ ایک فقیر کی بیوی بن کے۔ میں اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرا نام رانیہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ ہمارا ڈیفینس میں ایک بڑا بنگلہ تھا جس میں نوکر چاکر اور ضرورت کی ہر شے موجود ہوتی تھی۔ مجھے ابھی کہنے کی دیر ہوتی کہ میری مطلوبہ شے حاصل کر دی جاتی تھی۔ مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت کبھی پیش ہی نہ آئی۔ گھر میں بہت سے ملازم تھے جو ہر کام کر دیا کرتے، اور ایک ملازمہ خصوصاً میرے لیے تھی تاکہ مجھے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گھر کے ملازم اتنے اچھے تھے کہ مجھے اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے تھے۔ ان سب کی بے حد توجہ اور پیار و محبت نے مجھے بہت حساس دل بنا دیا تھا، اور ماں اور باپ دونوں بزنس مین تھے۔ صبح ہوتے ہی مجھے اسکول چھوڑنے کے ساتھ ہی میرے ماں باپ گھر سے اپنے آفس کی طرف نکل جاتے اور پھر شام 6 کے قریب گھر آتے۔ جہاں مجھے اتنی خوشیاں ملی تھی، وہاں ایک اور غم مجھے آہستہ آہستہ چاٹ رہا تھا۔ میں گھر والوں سے اس کا ذکر کرتی تو میری ماں چپ ہو جاتی، لیکن میرا باپ مجھے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیتا۔ ان کے سمجھانے کے باوجود میرے دماغ سے وہ ساری باتیں نہ نکلتی جو لوگ مجھے سناتے تھے۔ اسکول میں لڑکیوں کا ایک گروپ تھا جو بدتمیزی میں بہت مشہور تھے۔ وہ میرے پاس آتے اور مجھے باتیں سنا کر ہنسنے لگتے۔ بلا شبہ میری بھی بے شمار دوستی تھی، لیکن وہ سب ان کی باتیں سن کر خاموش سی ہو جاتی۔ وہ کچھ نہ بولتی کیونکہ ان کو حقیقت کا علم نہ تھا۔ وہ میرا کیا ساتھ دے پاتی، جبکہ میں خود بھی لا علم تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، لیکن مجھے اپنے اس قدر فکر کرنے والے ماں باپ پہ ہرگز شک نہ تھا، نہ میں ان پہ کسی طور پر شک کر سکتی تھی۔ میرے کچھ ٹیچرز کو بھی مجھ سے اللہ واسطے کا بیٹھ تھا۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی، لیکن میں گھر جا کر یہ سب باتیں کسی کو بھی نہ بتاتی اور ایسے ظاہر کرتی تھی جیسے سب ٹھیک ہے۔ اسکول بہت اچھا ہے اور وہاں کی سب ٹیچرز بہت اچھے سے بات کرتی ہیں، میری بہت سی دوستیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔
क्योंकि घर बताने का नतीजा मैं देख चुकी थी। पहले भी एक स्कूल में मुझे टीचर्स ने कुछ ऐसे ही कलमात कहे। वो टीचर मेरे मोहल्ले की थी, इसलिए मुझे और घर वालों को अच्छे से जानती थी। इसकी बातों से दिल इतना जख्मी हुआ कि मैंने घर जाकर रो रो कर सबको बताया। तो अगले ही दिन वो टीचर उस स्कूल से निकाल दी गई और साथ ही मुझे माँ बाप ने किसी और स्कूल में भेज दिया। मुझे दुख इस बात का लगा क्योंकि स्कूल में लड़कियों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब ये वाली दोस्ती भी मैं गंवाना नहीं चाहती थी। बात कुछ ऐसी थी कि मेरी माँ ने मुझे शादी के 5 माह बाद जन्म दिया था और इस वजह से सारे लोग मुझे नाजायज़ औलाद कह के पुकारते थे। मोहल्ले की शरीर आंटियाँ जाने कैसे खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूरती और एक दूसरे को कोहनी मार कर बताती कि देखो देखो वो नाजायज़ जा रही है। मैं घर में आकर पूछा करती कि आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हो। अगर मैं नाजायज़ औलाद हूँ तो मुझे ये बता दें कि मैं आखिर किसकी बेटी हूँ। मैं यूँ हर रोज़ जिल्लत में नहीं जी सकती। लोग आते जाते मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं और ताने मारते हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सब बर्दाश्त कर जाऊँ, ये लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे पाऊँ। मेरा बाप मेरे पास आता और कहता, परेशान क्यों होती हो, ये दुनिया वाले किसी को खुश देख नहीं सकते। तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो, इन लोगों की परवाह करना छोड़ दो वरना ये सब तुम्हें बेच खाएंगे। मेरे माँ बाप हर रोज़ ऑफिस जाते थे, लेकिन जुमेरात को वो दोनों काम से छुट्टी करते और घर पर ही होते थे। मुझे उनकी लॉजिक की समझ ना आती थी। एक दिन मुझे मेरी पुरानी टीचर मिली जिसने पूरे स्कूल में मेरे बारे में मशहूर कर दिया था कि मैं नाजायज़ औलाद हूँ। उसने मुझे रोका और कहा कि तुम समझती हो कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारा बाप बहुत अमीर है, बड़ा बिजनेसमैन है और तुम बहुत नसीब वाली हो, लेकिन याद रखना तुम पाक नहीं हो और तुझे अगर अपनी दुनिया का सच पता चल जाए तो तू खुद की जान ले ले। तू तो ऐसी नाजायज़ है कि अपने माँ बाप को भी खा जाएगी। इस दिन मैं ड्राइवर का स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रही थी जब ये वाक़या हुआ। मैं कोशिश के बावजूद भी आंसुओं को ना रोक सकी और वहाँ बेंच पर बैठे ज़ारो की तार रोने लगी। मुझे वहाँ बैठे काफ़ी देर हो गई थी जब ड्राइवर मुझे लेने आया और उसने मुझे रोते देखा। मैं गाड़ी में बैठी और वो मुझसे कहने लगा, बीबी आप रो क्यों रही थी, किसी ने कुछ कहा है तो हमें बताओ। लेकिन मैं सिसकियाँ ले लेकर रोती रही। जब घर के नज़दीक आए तो मैंने ड्राइवर को बोल दिया कि घर जाकर किसी को न बताए और बैग लेकर जल्दी से गाड़ी से उतर गई। मैं अपने कमरे में थी जब मेरा बाप मेरे पास आया और कहने लगा, अरे पगली आज फिर क्यों रोती आई हो, बताओ क्या हुआ। मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनसे ना छुपा सकी। मैंने उनको इसरार पर सब कुछ उनको गोशगुजार कर दिया और बताया कि किस तरह उन्होंने मेरे साथ गलत किया और मुझे नाजायज़ भी बोला। मेरे बाप ने हमेशा की तरह मुझे गले से लगाया और कहा, मेरे बच्चे तू बहुत नसीब वाली है, ये लोग तुझसे वाकिफ़ नहीं हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। जब तू 18 साल की हो जाएगी तो तब देखना तेरी दुनिया ही बदल जाएगी। मैं अब लोगों के ताने सुनकर रोती नहीं थी और बस जल्दी से 18 साल की होने का इंतज़ार करती रही कि कब 18 साल की हूँ और फिर सब ठीक हो जाएगा, मेरी दुनिया बदल जाएगी। कभी कभी मैं सोचती थी कि ऐसा क्या होगा जो मेरी दुनिया में कुछ अच्छा होगा। मेरे नाजायज़ होने वाली बात मेरे सारे रिश्तेदारों को मालूम थी। हमारे घर में अब्बा के भाई अपनी बीवी बच्चों समेत रहते थे, मगर मेरे सामने उन्होंने कभी मुझे कुछ न कहा था क्योंकि वो सब मेरे बाप की कमाई पर पल रहे थे। मैंने स्कूल ख़त्म करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। शुक्र की बात यह है कि मेरे इस कॉलेज में कोई मुझे नहीं जानता था। मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी और वहाँ सारे लोग ही अजनबी थे। मेरा इरादा था कि मैं कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाऊँ तो भी हॉस्टल में ही रहूँगी। इस दौरान मुझे बहुत अजीब से ख्वाब दिखाई देने लगे। मैं रातों को डरने लगी और सो ना पाती। हर हफ्ते में 2 दिन मेरे वालिदैन मुझसे मिलने आते थे। मैं 18 साल की होने वाली थी और अब शिद्दत से बस दिन गिन रही थी क्योंकि मुझे अपने बाप के कहे जुमलों पर पूरा यकीन था। मेरे जन्मदिन को 2 माह रह गए थे जब उस दिन मेरे वालिदैन मुझसे मिलने आए और फिर जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं साकत रह गई थी और कुछ बोल न सकी। वो कह रहे थे कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, तुझे अगर कभी ऐसा लगे कि ज़िंदगी में सब ख़त्म हो गया है तब भी नाशुक्री न करना, बस अच्छे की उम्मीद रखते हुए दिन गुजारती रहना। इंसान की किस्मत का कुछ पता नहीं वो उसे किधर ले जाए। मैं चुप हो गई थी। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर इन जुमलों का, ऐसी बातों का मुझसे क्या ताल्लुक। जैसी ज़िंदगी मैं जीती आ रही हूँ वो मुकम्मल ज़िंदगी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब ठीक चल रहा था और जब मैंने उनसे ऐसा कहा तो वो हंसना शुरू हो गए और फिर कुछ देर बाद उठकर चल दिए। मुझे उनकी हरकतों और उनकी बातों से सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उनके जाने के बाद मेरा दिल बुरी तरह परेशान हो गया और फिर कुछ देर बाद जो खबर मुझे मिली उससे मैं सकते में ही चली गई। मैं कभी फ़ोन को देखने लगती, कभी सुनने की कोशिश करती कि आखिर सच क्या है। गोमगो सी कैफियत थी जिससे मैं रोने लगी थी और इतनी शिद्दत से रोने लगी कि साथ वाले कमरे से लड़कियां मेरी आवाज़ सुन के मेरे इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। तभी फ़ोन से आती आवाज़ ने उनके कदम अपनी तरफ खींचे। उनमें से एक लड़की ने फ़ोन पकड़ा और वहाँ बोलने वाले इंसान से बात करने लगी।
इस बंदे ने जो कुछ बोला उससे वो लड़की खासी परेशान दिखाई देने लगी। उसने फ़ोन बंद किया और बताया कि इसके वालिदैन का आज हादसे में इंतकाल हो गया है और ये शख्स जाए वकुआ से बात कर रहा था। मैं कई बार बेहोश हुई और मेरा बीपी इतना लो हो गया कि मुझे इमरजेंसी में अस्पताल भी दाखिल करना पड़ गया। सब तरफ एक दौड़ सी लग गई थी। इनकी मौत को मैं कबूल नहीं कर पा रही थी। मैं इस वक्त को कोसने लगी जब वो अकेले चले गए थे और मैं उनके साथ न जा सकी। इनके जनाजे पे बहुत से लोग आए थे, इनके बिजनेस पार्टनर, कोलीग्स और बहुत से दूसरी पार्टियां भी। और मेरी वो वाली टीचर भी मुझे नजर आई थी। वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहने लगी है, लेकिन वो जाने फिर कहाँ गायब हो गई। कई दिन लग गए मुझे इस सदमे को सहने और इस हादसे पर यकीन करने को। हालात बिगड़ते जा रहे थे और अब सब कुछ बदल रहा था। मुलाजमीन का मुझसे रवैया अचानक बहुत तब्दील हो गया। वो सब जो मेरी फिक्र किया करते थे वो एक आवाज़ पर भागे चले आते और अब मेरे पास भी न भटकते। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ। अपने वालिदैन के बेहद लाड प्यार ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया था कि अब मुलाजिम भी मुझे आंखें दिखाने पर उतर आए थे। मुझे इन पर सख्ती करनी चाहिए थी। इनके इंतकाल के 1 महीने बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी का, उनका ऑफिस और हमारा घर बिक गया। बहुत से लोग जो इनके पार्टनर थे वो हिसाब किताब करने आ गए। मेरे चचा और चच्ची ने मुझे नाजायज़ औलाद कहकर मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं एक शानदार जिंदगी जीने वाली नाजुक सी लड़की बड़े से बंगले से अब अचानक सड़क पर आ गई थी। सड़क पर आते जाते लोग मुझे बेहाल देखते रहे, लेकिन कोई भी मदद को आगे ना आया। किसी ने आगे बढ़कर नहीं पूछा कि बेटी तुम इस तरह उजड़े हुए हाल में क्यों बैठी हो। वहाँ सड़क पर ही मुझे कई दिन बीत गए। मैं कभी किसी जगह पर जाती, कभी कहीं और। 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। जैसे जिंदगी अब मुझसे रूठ गई थी। मेरे जूते घिस चुके थे और नरमो नाजुक पाँव पर छाले पड़ गए थे। मैंने एक दिन इस जिंदगी से बेजार होकर चलती गाड़ी के नीचे आने का फैसला किया और पटरी पर जाकर खड़ी हो गई, जहाँ से कुछ देर बाद रेलगाड़ी ने गुजरना था। इससे पहले कि गाड़ी मुझे कुचल देती, एक फ़कीर मेरे पास आया और उसने मुझे दूसरी तरफ धक्का दे दिया, जिससे मैं ट्रेन के नीचे आने से तो बच गई, लेकिन मुझे इस इंसान पर गुस्सा आया जिसने मुझे बचाया था। जब ट्रेन गुजर गई तो वो मेरे सामने आया और हुलिये से एक फ़कीर लगता था, जिसके बड़े बड़े बाल थे। उसके थैला अपनी कमर पर बांधा हुआ था। मुझे देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई और उसने तेज़ी से मेरा बाजू पकड़ा और उसकी आंखों की चमक से मैं डर गई और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने चीखने की कोशिश की और मदद के लिए पुकारने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर कोई भी ना आया, क्योंकि वो एक बयाबान इलाका था जहाँ ट्रेन गुजरने के बाद अब सुनाटा सा छा गया था। मैं इससे खौफजदा होने लगी और रोने लगी, लेकिन इस फ़कीर ने मेरा बाजू छोड़ा और कहका लगाने लगा। जब उसने बाजू छोड़ा तो यूं लगा जैसे कि पत्थर के नीचे से मेरा बाजू आज़ाद हुआ था। मैंने मौका देकर भागने की ठानी और भागने लगे। वो मुझे भागता देखता रहा और हंसता रहा। फिर वो अचानक खामोश हुआ और मेरी तरफ भागा। मैं उसे अपनी तरफ भागता देखकर डर सी गई और इधर ही गिर गई। मैंने जब उठना चाहा तो वो मेरे सर पर पहुंच चुका था। भागकर आखिर कहाँ तक जा सकती हो तुम? तुम्हारी तलाश और मेरी तलाश खत्म हुई, मुझे तुम ही मिल गई। अब मेरी दुनिया बदल जाएगी। मुझे अपने बाप की बातें याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन यहाँ मेरी दुनिया कितने बुरे तरीके से बदलने वाली थी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी ना थी, लेकिन इस फ़कीर की किस्मत पे मुझे रश्क आया। उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई और अब वो जाने किस किस्मत, किस दुनिया की बात कर रहा था। वो फ़कीर मुझे ज़बरदस्ती खींचते हुए एक ऐसे इलाके की तरफ ले जाने लगा जहाँ ज़िंदगी का नामो निशान तक न था। मैं हाँफती रही और वो मुझे घसीटता रहा। काफ़ी देर बाद उसकी झोंपड़ी दूर से दिखाई देने लगी। मैंने उसे बहुत आराम से पूछना चाहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अब वो बहुत संजीदा दिखाई देने लगा। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। मुझे उसकी गहरी खामोशी काट रही थी। जब उसकी झोंपड़ी आई तो उसने मुझे वहीं छोड़ा और ख़ुद बाहर करीबी पानी के झरने की तरफ चला गया। जाने से पहले उसने मुझे तंबीह की और कहा, खबरदार, अगर भागने का सोचा भी तो तुम्हें ढूंढ तो मैं लूँगा, लेकिन तुम मुझसे बचोगी नहीं। इसके अल्फाज ऐसे थे जैसे मुझ पर जादू कर दिया हो। मैं चाहने के बावजूद वहीं बैठी रही, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे उठने न दे रही हो। कुछ देर बाद वो फ़कीर वापस आया तो वो अपने साथ खाने के लिए बहुत सी चीज़ें लाया था। मैं कई दिन की भूखी थी। ढंग से खाना ना खा पाने की वजह से मैंने जल्दी से खाना खाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी और जब पेट भर गया तो मैंने देखा वो फ़कीर मुझे ही देख रहा था। मैंने आंखें नीचे को कर ली। रात हुई तो मैं वहाँ एक लकड़ी के बेंच पर कुछ कपड़े डालकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि वो फ़कीर झोंपड़ी में नहीं था। मेरे लिए ये आसान हल था भाग जाने का। मैं बाहर निकली और चलने लगी, लेकिन मुझे रास्तों की कुछ समझ ना थी कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। सामने से मुझे वो फ़कीर कुछ बंदों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। मैं डर के मारे वापस भागने लगी और झोंपड़ी में आ गई। वो वापस आया तो उसके साथ एक मौलवी, जिसने हमारा निकाह पढ़वाया। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही उजड़ गई। इतनी जल्दी शादी का सोचा तक न था
और वो भी एक ऐसे इंसान से जो बहुत फ़कीर और अजीब से हुलिये का मालिक था। वो लोग वापस चले गए तो वो मुझे सुर्ख अंगारा आंखों से घूरने लगा और कहने लगा, तुम यहाँ से भागने के तरीके तलाश करना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, आराम से यहाँ रहो। वो मुझसे भीख मंगवाने लगा और शहर अपने साथ ले जाने लगा। मैं पूरा दिन उसके साथ साथ जाती रही और भीख मांगती रही। मैंने अब भागने का ख्याल दिल से निकाल दिया था, क्योंकि मेरी फैमिली में से मेरे माँ बाप के रिश्तेदारों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मैं किसी सूरत भी वापस आऊँ। मैं इसके साथ साथ ही रहने लग गई और उसे अपना शौहर मान लिया। मुझे शदीद परेशानी हुई जब शादी के 5 माह बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे अब बस जुमेरात को साथ लेकर जाने लगा। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों है, पूरे हफ्ते में सिर्फ जुमेरात को ही क्यों। मैं घर में बाकी काम करती और वो बाहर से खाना ले आता। मुझे घर के कामों की आदत न थी, लेकिन अब जब सर पर पड़ी तो सुकून से करने लग गई थी। एक दिन जब जुमेरात को मैं उसके साथ भीख मांगने गई तो मैंने अपने स्कूल टीचर को भी देखा, जो कि किसी मज़ारे के साथ बैठी थी। मैंने उसे देखा और उसकी तरफ चल दी। वो मुझे कई लम्हे देखती रही, जैसे पहचान कर रही हो। फिर जैसे ही पहचान लिया तो हंसने लग गई। तुम नाजायज़ लड़की, तुम इस काबिल थी। देखा, मैं ना कहती थी कि तुम मनहूस लड़की हो जो अपने माँ बाप को खा गई और अब दरबदर ठोकरें खाती फिर रही हो। अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल से निकाला गया था, अब तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। इसे ही कहते हैं किस्मत। वो हंसते हुए कहती गई और मैं इधर ही खड़ी रह गई। मेरा शौहर मुझे ढूंढते हुए आया और मुझे देखकर ठटक गया, जैसे उसे मुझे देखकर कुछ याद आ गया हो। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों देख रहे हो? तो उसने कोई जवाब न दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक ऐसी जगह लेकर गया जहाँ जाकर मैं कदम आगे ही बढ़ा न सके, क्योंकि वहाँ जो मैंने देखा वो मेरे लिए एक अलग ही दुनिया थी। मैं कभी इस जगह को देखने लगी और कभी अपने शौहर की तरफ। मेरा शौहर मुझे लेकर इस आलीशान घर में आ गया। ये अलग ही दुनिया थी। यहाँ आकर मैं हैरान रह गई कि मेरा शौहर तो फ़कीर है, फिर हम यहाँ कैसे आ गए। उस दिन के बाद से मैं अब घर पर ही रहती हूँ और वो भीख मांगने चला जाता है। अभी सुबह मैं अपना गायनी चेकअप करवाने गई थी तो तुम्हें देखा और तुम्हें अपने साथ इसलिए ले आई क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि तुम्हें भी नाजायज़ होने का दुनिया ताना दे। ये दुख मैं सह चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें इसका शिकार होते नहीं देख सकती। नाइमा मेरी कहानी सुनकर चुप रह गई। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि जब मुझे नाजायज़ होने का ताना मिला था तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं कई दिन सो नहीं सकी थी, रोती रहती थी, मगर वो तो बहुत सुकून से थी। मैंने हैरत से पूछा तो वो कहने लगी, मुझे ये राज 3-4 साल कबल ही पता चल गया था। रात को मेरा शौहर घर आया तो उसके पास ढेरों पैसे थे जो वो मुझसे छुपा कर अलमारी में रख रहा था कि मैंने देख लिया इतने पैसे तो कोई भीख से हरगिज़ नहीं कमा सकता था। मैं समझ गई कि मेरा शौहर किसी गलत काम में पड़ गया है। मेरी ज़िंदगी में पहले ही इतने मसले थे जिनके जवाब मुझे चाहिए थे कि मेरे बाबा ने मुझे ये क्यों कहा कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और ये फ़कीर कौन था जिसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। इसका क्या मकसद था आखिर? मेरी वो टीचर मुझसे क्या दुश्मनी रखती थी? और ऐसे बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात में तलाश करने की कोशिश में थी। और अब फिर से अपने शौहर का ये मशकूक रवैया एक अलग कहानी था। नाइमा अच्छी लड़की थी, एक्सीडेंट की वजह से वो कुछ अरसा चलने फिरने के काबिल नहीं रही थी, इसलिए व्हील चेयर पर थी और मैं उसका पूरा ख्याल रख रही थी। अगले दिन इसकी माँ आई और उसे कुछ सामान दे गई। उसकी माँ उसे जाने कैसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई थी। मैंने तजस्सुस से उस बैग में देखा। नाइमा ने बैग मेरे सामने खोला ही नहीं और कहने लगी, अम्मी मेरा लैपटॉप और मोबाइल देने आई थी। क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ फारिग रहने की बजाय कुछ काम कर लूँ। वो मुझसे 1 साल छोटी थी, मगर वो बहुत ज़हीन थी। मेरी तरह उसे अपने नाजायज़ होने पर कोई अफसोस नहीं था। मेरा शौहर कभी किसी दिन माजूर बनकर भीख मांगने जाता और कभी अंधा बन के रोज़ ढेरों पैसे लाता। एक दिन मैंने उसके पास एक महंगा टच मोबाइल भी देखा था। मेरा शौहर रोज़ मुझसे कहता, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, इस पर नज़र रखो। मगर मैं उससे लड़ती कि एक माजूर लड़की से आखिर इसको क्या मसला है, इतना बड़ा घर है, वो भी रह लेगी तो क्या हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। डॉक्टर थी नहीं तो मुझे जल्दी आना पड़ा। रास्ते में एक जगह सिग्नल पर रिक्शा रुका तो मैं इधर उधर देखने लगी। मैंने देखा कि मेरी दाएं तरफ कार में मेरी टीचर बैठी हुई थी, वही टीचर जिसे एक दिन मैंने एक दरबार में देखा था। वो कार में किसी सोटिड बूटिड आदमी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैंने उस शख्स को गौर से देखना चाहा जिसके साथ मेरी टीचर बातें कर रही थी, तो उसको पहचानने में मुझे कुछ वक्त लगा। बेहतरीन सूट और निखरी निखरी रंगत लिए वो कोई और शख्स नहीं, मेरा फ़कीर शौहर था। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिजनेसमैन हो, मगर ये मेरी टीचर जो मेरी दुश्मन है इसके साथ क्या कर रहा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं घर वापस आ गई तो नाइमा मेरे कमरे में थी। मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहने लगी, आपका कमरा बहुत खूबसूरत है, मैं इसकी पेंटिंग बनाना चाहती थी इसलिए देख रही थी। मैंने उसकी बातों पर ध्यान न दिया तो वो खुद ही वापस चले गए।
इस वक्त मेरा दिमाग बहुत सुन हो रहा था। शाम को मेरा शौहर वापस आया तो फकीर वाले गंदे हुलिये में ही था। मैंने उसे ज़रा शक न होने दिया कि मैं उसको सुबह किसी और हुलिये में देख चुकी थी। रात को वो बहुत परेशान मेरे पास आया और कहने लगा, तुमने ऊपर वाली दराज की तलाशी ली है? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगा, अगर तुमने नहीं ली तो तुम्हारी नई दोस्त ने मेरी अलमारी की तलाशी ली होगी। मैंने कहा, वो बेचारी व्हील चेयर पर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती और तुम्हारी अलमारी खोलने के लिए स्टूल पर चढ़ना पड़ेगा। मैं सब समझ रही थी कि मेरी दोस्त पर वो झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे निकालना चाहता है, मगर ऐसा मैं किसी सूरत नहीं होने दे सकती थी। अब मुझे उस पर नज़र रखनी थी। नाइमा या तो अपने मोबाइल पर लगी रहती या लैपटॉप पर, और मैं चूँकि उम्मीद से थी इसलिए मेरी तबीयत ज़्यादातर ख़राब ही रहती थी, वरना मैं चाहती थी अपने शौहर की असलियत का पता चलाऊं। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें मेरा शौहर और मेरे वालिद एक तस्वीर में खड़े थे। लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। ऐसा भला कैसे हो सकता था? सोच सोच कर मेरा दिमाग फट गया तो सोचा कि नाइमा के कमरे में जाकर उसे दिल बहला लेती हूँ। उसके कमरे में दाखिल होते हुए उसके कुछ अल्फाज मेरे कानों में पड़े। वो कह रही थी, बहुत जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा, फिक्र न करें, फिर मैं ये घर छोड़ दूंगी। मैं अंदर गई तो उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया और कहने लगी, एक बड़ा काम मिला है, जैसे ही कर लूँगी तो बहुत पैसे मिलेंगे, फिर मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी और चली जाऊंगी। मैंने उसे गले से लगा लिया। वो मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह अजीज़ हो गई थी, इसलिए जब भी मेरा शौहर उसे घर से निकालने की बात करता मैं रोने लग जाती और ख़ुद भी निकल जाने की धमकी देती तो वो चुप हो जाता। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे अपने शौहर के राज का पता चल जाए कि वो मेरे वालिद को कैसे जानता है, मगर पता ना चल पा रहा था। मुझे 5वां महीना शुरू हो चुका था और नाइमा को हमारे घर 1 महीना हो चुका था और अभी तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई थी। इसके बावजूद मेरे शौहर ने कई बार उस पर शक का इजहार किया। मैंने अक्सर उसे फ़ोन पर बातें करते देखा था। वो कहती कि वो अपनी माँ से बातें कर रही है। 2 मरतबा उसकी माँ भी आई थी और मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैंने उसकी बेटी को पनाह दी हुई थी। इस दिन इतवार का रोज़ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर था, लेकिन उसके साथ नाइमा के माँ बाप भी थे। मुझे कहने लगा, मैं इसके माँ बाप को समझा दिया है, वो अब अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, इसीलिए इसे लेने आए हैं। मैंने इन दोनों मियाँ बीवी के चेहरे की तरफ देखा तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी मर्जी से आए हैं। खैर, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और नाइमा को बुला लाई। वो मेरे शौहर के साथ अपने माँ बाप को देखकर हक तक रह गई। उसका रंग पीला पड़ गया। मेरा शौहर कहने लगा, देखो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप लेने आए हैं, चलो अपना सामान पैक करो और अच्छे बच्चों की तरह घर जाओ। वो तो जैसे साकत रह गई थी, जबकि मेरे ख्याल से उसे खुश होना चाहिए था। मैं उसे थोड़ा दूर खड़ी थी कि अचानक वो हो गया जिसका मैंने गुमान भी नहीं किया था। नाइमा एकदम बिजली की तेज़ी के साथ उठी और व्हीलचेयर को धक्का देकर एकदम मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और मेरी कनपटी से कुछ लगा दिया। शायद वो पिस्तौल था। मेरी सांस रुकने लगी। वो तो माजूर थी, अब एकदम कैसे उठ गई और उसके पास पिस्तौल कहाँ से आई? वो ऐसा क्यों कर रही है? मेरा शौहर भी उठ गया और उसके माँ बाप भी। नाइमा फिटकारते हुए मेरे शौहर से बोली, तुम क्या समझते हो मेरे साथियों को बस में कर लोगे तो मुझे भी शिकार कर लोगे? अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर मेज़ पर रख दो और मेरे साथियों को जाने दो। ये सब क्या चल रहा था? मेरे दिमाग माउफ होने लगा। मेरे शौहर ने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकालकर मेज़ पर रख दिया और उसे कहा, खबरदार मेरी बीवी को कुछ मत कहना। वो 2 लोग जिन्हें मैं नाइमा के माँ बाप समझ रही थी कहका लगाते हुए हमारी तरफ आने लगे, मगर कुछ और होना शायद अभी बाकी था कि यूनिफॉर्म पहने कई बंदों ने एकदम से हल्ला बोल दिया। नाइमा और उसके दोनों साथियों को वो गिरफ्तार करके ले गए। तो मैंने अपने शौहर से पूछा, क्या है ये सब? वो कहने लगा, लंबी कहानी है, इनको जेल भेज कर आता हूँ, फिर आकर सुनाऊंगा। मैं इसका बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। आखिर शाम को वो वापस आया और मुझे सारी कहानी सुनानी शुरू की। कहने लगा, तुम नाजायज़ नहीं हो। हाँ, तुम्हारे बाबा जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया वो तुम्हारे असल बाप नहीं थे, तुम्हारे बाप के दोस्त थे। तुम्हारे दोनों बाप स्पेशल फोर्स में काम करते थे और उनका काम ऐसा था कि वो अपने काम और पेशे को अपने ख़ानदान पर जाहिर नहीं कर सकते थे। तुम्हारी माँ उम्मीद से थी जब तुम्हारे असल बाप की वफ़ात हुई, फिर दोस्त से वादा वफा करते हुए तुम्हारी माँ और तुम्हारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, जिन्होंने सारी ज़िंदगी तुम्हें बाप बनकर पाला। मैं भी उनके दोस्त का बेटा था और उन्होंने बचपन से ही मेरा और तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था और कहा था कि जब तुम 18 की हो जाओगी तो वो हमारा निकाह कर देंगे। मगर इससे पहले ही वो दुश्मनों की नज़र में आ गए और इस दुनिया से चले गए। मुझे अपना वादा याद था, इसलिए तुम्हें तलाश करना शुरू किया। इस वक्त मैं अपने मिशन पर था। मुझे एक फ़कीर के रूप में रहकर कुछ जराइम पेशा अफराद के बारे में मालूमात करनी थी। इसलिए जब तुमसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं इसी भेस में था। फिर तुम्हें बताने का इरादा तब तक मौकूफ़ कर दिया जब तक मेरा मिशन पूरा ना हो जाता। फिर मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें नाइमा के ज़रिए ट्रैप किया गया। मुझे पहली नज़र में ही वो लड़की मशकूक लगी थी।
फिर मुझे उस पर तब शक हुआ जब मेरी अलमारी के साथ छेड़छाड़ हुई जिसमें मेरे कई राज छुपे हुए थे। इसलिए इसकी मालूमात निकलवाई तो पता चला कि वो मेरे दुश्मनों की भेजी हुई काला कार है। बस फिर इसके साथियों को पकड़ा और यहाँ ले आया। मैंने उलझन से पूछा, मगर तुम उस दिन कार में मेरे टीचर के साथ क्यों थे? कहने लगा, तुम शायद नहीं जानती कि वो टीचर शुरू से ही तुम्हारे बाबा से शादी करना चाहती थी, मगर जब नाकाम हुई तो बदले के तौर पर उसने तुमसे नफरत शुरू कर दी और तुम्हारे बारे में गलत बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसे जब नौकरी से निकाला गया तो उसने शादी कर ली, मगर उसकी वो शादी नाकाम हुई क्योंकि वो तुम्हारे बाप को भूली नहीं थी। इस सब का जिम्मेदार वो तुम्हें समझती थी। फिर जब उसे करने को कुछ ना मिला तो वो गलत कामों में पड़ गई और पैसे की खातिर दुश्मनों की सहूलतकार बन गई। इस दिन मैं उसे ट्रैप कर रहा था। उससे तो बहुत सारी मालूमात मिली हैं और अब वो भी जेल में है। तुम्हारा शौहर कोई फकीर नहीं, कैप्टन है, और शुरू में तुम्हें भी भीख मांगने के बहाने अपने साथ इसीलिए रखता था ताकि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। अगले दिन के अखबारों में मेरे शौहर की बहादुरी और इस मिशन के हवाले से काफ़ी कुछ लिखा गया था। मेरे सारे रिश्तेदारों को भी सारी कहानी पता चल गई और अब वही मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे कि मैं कैप्टन की बीवी हूँ। बाबा ने सच कहा था, मैं बहुत नसीबों वाली थी जो मुझे पहले इन जैसे बाप मिले और अब एक बेहतरीन शौहर। मेरी दुनिया सच में बदल गई थी। मैं फर्श से गोया अर्श पर आ गई थी। लेकिन इस सब से मैंने एक सबक भी सीखा कि हर किसी पर एतबार नहीं कर लेना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।